ناظرین پٹھوار.com کی طرف السلام علیکم۔ ڈینگی بخار اور اس نے تو بچاؤ نے احتیاطی تدابیر یونین کونسل چوا خالصہ وچ موجود ہیں۔ دفتر انہوں نے بھی کافی سارے دوست و احباب اتنے اکٹھے ہوئے اور یہ اویئرنیس نا پروگرام ملازہ فرماؤ۔ تمام معزز مہمانوں کو یونین کونسل چوا خالصہ کے دفتر میں خوش آمدید کہتے ہوئے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پہلے یہ بتانا مقصود ہے یہ تقریب اسسٹنٹ کمشنر کلر سیدہ محترمہ امبر گیلانی کے ہدایت پر منعقد کی جا رہی ہے اور اس کی میزبانی کے فرائض میں وہ مظفر سیٹھی صاحب یونین کونسل کا عملہ ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ جو پروگرام ہے یہ ڈینگی کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کا انتہائی اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 6-7 سالوں سے حکومتی لیول پر سماجی تنظیموں نے اپنی جگہ پر اپنا رول ادا کیا، مگر یہ سمجھ لیں کہ یہ عذاب الہی ہے ہم پر۔ کچھ ہمارے کردار، کچھ ہمارے عمل کا جو عذاب ہم پر اللہ نے نازل کیا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے، جس کے لیے آج کی یہ میٹنگ کال کی گئی ہے۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک نام سے کریں گے۔ تو میں مسجد صدیق اکبر محلہ چوا خالصہ کے امام جناب حافظ عبدالرحمن صاحب سے گزارش کروں گا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا بھی میڈیا پہ بھی آئے روز آپ اس بات سے فیملر ہے کہ ڈینگی کیا ہے اور یہ کیوں زیادہ پھیل رہا ہے۔ اگر اس بات کو مختصراً جائزہ لیا جائے تو جتنا باب پانی کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس ساری خرابی کی وہ جڑ پانی ہے، پھر وہ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کی طرف اگر ہم چلے گئے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور وضو کرتے ہوئے بھی پانی کو ضائع مت کریں۔ اگر ان دو چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں، آج ہم اپنے گھروں کے اندر پانی کا استعمال دیکھ لیں، مساجد کے اندر دیکھ لیں، بازاروں کے اندر دیکھ لیں، بے تحاشا بے جا پانی کا اسراف کیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو فراموش کر چکے ہیں اور یہ اللہ کا عذاب ڈینگی کی صورت میں ہم پر رہا ہے۔ ذرا سماج سے ہٹ کر مسجد میں آپ اس بات کو ذرا سوچئے گا کہ ہمارا دین ہمیں وضو کے اندر بھی بہت قلیل پانی کے استعمال کا درس دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ آخر اس کی کچھ وجوہات ہیں اور یہی وجوہات آج وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو بیماریوں کی صورت میں پھیل رہا ہے۔ خدا یہ کوشش کیجیے، میں ایک مثال ہوں، جب یہ تقریباً ہم لوگ اب زیادہ تر لوگ پچھلی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے، جب ہماری مائیں گھر میں برتن دھوتی تھی ایک جگ کے اندر پانی لے کے پورے گھر کے برتن دھو لیے جاتے تھے۔ آج ہماری بیگمات آئی ہیں، آج ہمارے دور آئے ہیں، ہماری بچیاں آئی ہیں، ایک کپ کو دھونے کے لیے ایک جگ لگ جاتا ہے۔ یہ پانی کا ضیاع جتنا روکیں گے اتنا ہی باہر جا کے بگان کم پڑے گا۔ ڈینگی کے حوالے سے آپ کو خصوصی پیغام کے لیے میں دعوت دوں گا۔ برادرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، اس جو مرض ہمارے اندر، ہمارے جسموں میں، ہمارے نوجوانوں میں سرایت کر چکی ہے اور ہمارے علاقے میں بھی اس کا وائرس کی اطلاعات کچھ ملی ہیں، تو اس کے لیے ڈینگی بخار جو ہے وہ کہتا ہے کہ گھبرائیں نہیں بلکہ کیا کریں، احتیاط کریں۔ جتنی احتیاط کریں گے اتنی اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ بر وقت مرض کی تشخیص اور علاج مریض کو جلد اور مکمل طور پر صحت یاب کرتا ہے۔ ڈینگی بخار ایک وائرل بیماری ہے جو ایک مخصوص مچھر ایڈیس ایجپٹی کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مچھر گھریلو مچھر کہلاتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر اور آس پاس موجود پانی میں ہی پرورش پاتا ہے۔ مچھر ذخیرہ کیے گئے پانی میں پرورش پاتا ہے، سب مچھر نہیں۔ یہ کون سا پانی؟ مادہ مچھر مختلف جگہوں
घरों, स्कूलों, दफातर वगैरह में रखे गए पानी के बर्तन, ड्रम्स, रेफ्रिजरेटर की ट्रे, रूम कूलर और एसी के ड्रेन गमले, पानी की टंकियाँ और जहाँ बारिश का पानी जमा हो उसमें अंडे देती है और जो 5 से 10 दिन में मुकम्मल मच्छर बन जाता है। होता है बुखार और नज़ला, फ्लो, जिस्म, कमर और जोड़ों में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, जिस्म पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं, शदीद बीमारी DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर की सूरत में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन मुंह और नाक से खून जारी हो जाता है। बुखार की सूरत में मरीज़ जो है फौरी तौर पर किसी करीबी सरकारी हॉस्पिटल जहाँ मुफ्त तशखीस और इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर हैं वहाँ पर पहुँचाया जाए। तशखीस व इलाज मुस्तनद डॉक्टर से किया जाए। आज हमें बहुत बड़ी एक और भी बीमारी है, हमें तकलीफ होती है, हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, फलां ने ये गोली खाई थी, उससे उसको अफाका हो गया था, हम भी यही गोली खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो गोली उसको किसी और वजह से दी गई हो, हमारी वजह कोई और हो, इसलिए गलत तशखीस जो होती है। ये साथ साथ मिकदार में पीने वाली अशिया या सूप और दूध ज़्यादा पिलाया जाए। डेंगू बुखार के मरीज़ को मर्द के दौरान, जैसा कि हमारी आदत है, एस्प्रिन, ब्रीफिन किसी सूरत में इस्तेमाल ना करें, हम ये फ़ौरन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेंगू में इसका इस्तेमाल ममनू है। तेज़ बुखार की सूरत में ठंडे पानी की पट्टियाँ, घरों के रोशनदान और खिड़कियों में जाली का बंदोबस्त है। ये बजट में और भी इजाफा है, हमारे ज़्यादातर घर जो हैं इसी तरह दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसमें वो अभी भट्टी साहब ने अपने इफ्तिताई बयान में फरमाया कि ये पानी हमारे घरों के अंदर, घरों के बाहर जमा है और हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। कम अज़ कम हमें अपनी सेहत की हीरा करने के बर्तन, टैंकियों, ड्रमों को ढांप कर रखें। पानी जब लीक कहीं से हो रहा हो तो इसका फौरी इंतज़ाम करें। रात को सोते वक्त कॉयल, मच्छर भगाओ लोशन या मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। रेफ्रिजरेटर की ट्रे और रूम कूलर में पानी जमा न होने दें। बच्चों को पूरी आस्तीनों के कपड़े के बर्तन खुश्क और साफ रखें। ये सकते हैं बाज़ारों में बैठकर, अगर इसे अपना एक मजहबी फरीज़ा समझकर अपने इर्द गिर्द में बैठे हुए लोगों में इन दिनों इसी टॉपिक को चला लें कि वो किस तरह एहतियाती तदाबीर करें, घरों में पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, बर्तनों को ढांप के रखें। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। आप लोगों का यहाँ आना भी ये इबादत के ज़ुमरे में जा रहा है। आप अल्लाह की मखलूक को एक बीमारी से दफा करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाकर इस बात को हमने भूलना नहीं है। कम अज़ कम मेरा आज का जो एक मैसेज है वो ये है कि आप अपने घर के दाएँ और बाएँ जो आपके पड़ोसी हैं, आज सिर्फ उनके घरों में जाके ये कह दें कि पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, सफाई रखें। ये जो सिस्टम्स आपको बताई गई हैं जो पॉपुलर हैं, इस पर अगर अमल करवा दें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम हम 100-200 घरों को इस हमारी खुश नसीबी है कि हमारे आज भाई डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह खान न्याज़ी साहब पीर्स डिपार्टमेंट होली फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे दरमियान है, क्योंकि ये उनका फील्ड है, वो हमको बेहतर इसके मामले में तरीके से बता सकते हैं हमने किस तरह अपना दफा करना है, ये बीमारी असल है क्या है, और इसके हमारी कल यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है डेंगू से आगाही के मुतालिक बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने जो है ये चीज़ बताई, ठीक है, बिल्कुल जो है सही तदाबीर बताई हैं उन्होंने, ठीक है, यही एहतियात हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई नई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको इससे अगली बातें थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है, कि जब डेंगू हो जाए तो क्या हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर हमें ये होता है कि अगर जो है ना किसी को बुखार 2 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं और बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो पैरास्टामोल या कोई भी और मेडिकेशन ले रहा है, ठीक है, और इसके बावजूद उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा, बाज़ औक़ात जो है ये सिर्फ दबे जो है ना बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होते जिस्म पे, सिर्फ बुखार होता है, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी कंप्लेन नहीं आती। कुछ जब ये बीमारी बढ़ती है 2 से 4 दिन गुजरें, ठीक है, उसके अंदर ये भी हो सकता है कि बंदे का जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाए, उसका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाए। 2 किस्म के प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक जिसको हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, और एक डायस्टोलिक जिसको हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। इन दोनों का जो वक्फा होता है वो नॉर्मली 30 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
मतलब कि एक दम नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, 120/80 हम कंसिडर करते हैं, या 110/70 भी हम नॉर्मल, 170 तक हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। बच्चों के अंदर 90/60 नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है, ठीक है, कि ये पल्स प्रेशर इसको हम कहते हैं, जो दरमियानी वक्फा होता है दोनों प्रेशर्स का, ये जो है कम आ जाता है। ऐसे मरीज़ की जो पल्स होती है वो बहुत इतनी कम हो सकती होती है, ठीक है, कि वो महसूस नहीं होती। जो इवन बहुत अच्छा चेक करने वाला मौलिद भी है, ठीक है, उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है पल्स इसकी ढूंढने में, और ऐसे बंदे का जिस्म ठंडा भी होना शुरू हो सकता है ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से। ऐसे मरीज़ में करना ये चाहिए कि उसको फ़ौरन ही किसी ऐसी जगह पे भेजना चाहिए जहाँ ब्लड CP का टेस्ट, इनिशियल टेस्ट है, वो हो सके, और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मौजूद हो, जैसे कि आपका THQ कलर सईदा है, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि आप वहाँ पे उनको रेफ़र करें। उसका रेफरल का फ़ायदा ये होगा कि उसका ब्लड CP टेस्ट आ जाएगा, उसके अंदर जो मॉलेज है वो देख सकता है, ठीक है, कि इसके अंदर कोई वाइट सेल बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रहे। उसमें सीरियल मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, कि वो एक दिन वो करते हैं, वो अगर उनको नॉर्मल लगते हैं ब्लड प्लेटलेट काउंट, या फिर जो है ना उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो भी नॉर्मल लगते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि जी आप 24 घंटे या 48 घंटे के बाद ये टेस्ट दोबारा करवाएं। उस दोबारा करवाने से ये चीज़ें दोनों के डिफरेंस पता चलता है, ठीक है, कि ये क्या इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी खून में सुर्ख सेल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुए और वाइट सेल बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गए हैं। वाइट सेल दो किस्म के होते हैं, एक WBC वाइट ब्लड सेल होते हैं और एक प्लेटलेट होते हैं। इन दोनों की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये होता है कि इन्फेक्शन के अंदर ये होता है कि वाइट सेल काउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन डेंगू बुखार इसके अंदर वाइट सेल WBC भी कम होना शुरू हो जाते हैं और प्लेटलेट भी कम होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट अगर इस हद तक कम हो जाएं कि वो 10,000 की मिकदार को भी टच कर लें तो खून आ सकता है जिस्म के किसी भी हिस्से से, ठीक है। उसके जिस्म पे धब्बे भी बन सकते हैं, नीले रंग के भी धब्बे बन सकते हैं, सुर्ख रंग के धब्बे बन सकते हैं। उसके जिस्म से नाक, मुंह से, कान से, ठीक है, पखाने या छोटे पेशाब के रास्ते खून भी आ सकता है, ठीक है। ख़वातीन के अंदर, ठीक है, अगर जो है ना माहवारी है तो माहवारी के दौरान भी जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ अलामात हैं, ठीक है। बाकी अलामात जो है इन्होंने जो जनरल वेक सिम्टम्स हैं कि उनको बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, पसीने आ सकते हैं, ठीक है, और साथ में जो है ना डेंगू के हवाले से बड़ा खौफ और रास फैलाया जा रहा है। देखिए जी, सादा इलाज और खौफ और रास डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हम इसकी एक तो ये चीज़ है कि एहतियाती तदाबीर से हम बचा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी घर में डेंगू का पॉजिटिव केस आ भी गया है तो हमने घर पे आइसोलेशन कैसे करनी है। आजकल सिंपल डेंगू बुखार को तो अस्पताल में दाखिल करने की जगह ही नहीं है कि वो सिंपल डेंगू बुखार को दाखिल करें, वो तो DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम को दाखिल कर रहे हैं। क्यों कि मरीज़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो उनके पास जगह ही नहीं है। गवर्नमेंट सेटअप में इवन जो है ना एक बेड पे 2-2, 3-3 जो है ना पेशेंट्स डाले हुए हैं, इसके बावजूद जो है ना वहाँ पे जगह नहीं है। रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल था जो कि काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था, गवर्नमेंट ने वो अस्पताल भी खाली करवा के गवर्नमेंट के इस होली फैमिली के अंडर कर दिया है, ठीक है, कि वहाँ पे भी आप डेंगू के मरीज़ों को दाखिल करें। तो सिंपल डेंगू फीवर को हम घर पे उस मरीज़ को जो है ना मतलब एक चारपाई दे के उसके ऊपर जो है ना मच्छरदानी लगाएं, ठीक है, नीचे से जो है ना उसकी चारपाई को कवर हो, ठीक है, कि कहीं से कोई मच्छर दाखिल ना हो सके। और घर के जो है ना दीवारों पे जो है ना, ठीक है, जहाँ पे जो है ना खिड़कियाँ हों वहाँ पे जो है ना उस पर जाली लगाएं जहाँ से मच्छर दाखिल ना हो सके। दरवाजे बंद रखें खतरात से, उसमें जो है ये चीज़ें कि और आस्तीनें जो है ना फुल चढ़ाएं, ठीक है। बच्चों के लिए खुसूसन जो है ना मतलब ये चीज़ें कि फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहनाएं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसका फ़ायदा ये होता है, ठीक है, कि आप उसको जब कवर कर लेते हैं तो उससे अंदर पिछले 6-7 साल जब से हम जो है ना डेंगू से अवेयर हुए हैं, ठीक है, 6-7 साल के अंदर बच्चों के हवाले से कोई भी डेथ वाकई नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जो पेरिफेरी में या पहुंच नहीं पाते मरीज़ इस फैसिलिटी तक, जब तक कि उनको जो है ना डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना ये पहले अमवात ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। और अब इसलिए हुई हैं क्यों इस दफ़ा प्रिवेंटिव जो मुहिम थी वो स्टार्ट नहीं की गई। इस मुहिम को स्टार्ट होना चाहिए था अप्रैल, मई और जून के अंदर, ताकि इस मौसम में हम उस मच्छर से बच सकते, क्योंकि हुकूमत कुछ और कामों में मसरूफ़ थी।
اس کاموں کے اوپر جو ہے نا ان کی توجہ نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور پچھلے کافی عرصے سے ڈینگی اتنی زیادہ جو ہے نا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا نہیں، اور وہ بہتر پریونٹیو میئرز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ڈینگی مچھر اس وقت نہیں تھا، وہ ہے اور موجود ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی جو ہے نا یہ چیز ایک طرح سے بایولوجیکل وار ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ایک طرح سے شروع کی گئی ہے، اور اس کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے اس مچھر کو یہاں پہ کہ اس بیماریوں میں مبتلا ہوں یہ لوگ۔ کیوں یہ بیسیکلی جو ہے نا مطلب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ کوئی سازش بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کے اوپر جو ہے نا یہ بحث مطلب فی الحال ہمیں اس سے بچاؤ کی ضرورت ہے، اور بچاؤ کے طریقے آپ لوگوں کو بہت بہتر طریقے سے بتا دیے گئے ہیں۔ گھروں میں آس پاس کے لوگوں میں جو ہے نا یہ اویئرنیس کریٹ کریں، ٹھیک ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے جو ہے میرے خیال میں جو ہے نا ٹھیک ہے، اگر سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا ٹھیک ہے کہ جو ہے نا جب آپ ایک امام مسجد ممبر بیٹھ کے تقریر کرتا ہے تو اس میں اگر وہ 2-4 منٹ ڈینگی کے اوپر دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو بہت اچھا ہوگا۔ اساتذہ کرام سے جو ہے نا اسکولوں کے اندر گزارش ہے، ٹھیک ہے، بچے ان کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے فیمیل ہیلتھ ورکرز جو ہے نا مختلف گھروں میں جا کے اس بارے میں اویئرنیس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی لوگوں تک آگاہی پھیلائی جا سکتی ہے ان کو بچاؤ کے طریقے بتائیں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو فوراً ریفر کریں۔ کسی کا بخار جو کہ پیراسٹامول یا باقی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، 3-4 دن ہو گئے ہیں، اس کو فوراً ریفر عائشہ جی کیا آخر ہوا جن حوالے نال جڑا پروگرام ہوا جی جڑا اج پروگرام کیتا گیا ڈینگی نے آگاہی نے والے نال بہت اچھا پروگرام ہے کہ عوام کی آگاہی ہونی چاہیے۔ اصل کیونکہ دیہاتی علاقہ اتنے لوگوں کی اویئرنیس نہیں سی، یہ جڑا پروگرام کیتا گیا میں سمجھنا کہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اتنے سارے علاقے لوگوں کی اس چیز کو آگاہی نہیں سی، اس پروگرام لوگوں کی آگاہی حاصل ہوئی۔ بہت شکریہ۔